সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্বংসরাব্য জন্য করে আমরা আবার দুবাই ফিরবো। দুবাইতে আবার একটা বিজিবিএস এর মিটিং করব, একটা প্রবাসীদের মিটিং করব, করে তারপরে দেড় দিন ওখানে থাকবো, তারপরে আমরা ফিরে আসবো 23 তারিখে। এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে দেখে রাখবেন, অনুরোধ থাকলো। এমন কিছু ঘটনা যদি কেউ ঘটায়, মানে আমার অবর্তমানে, আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো, যেহেতু আমি থাকছি না, বাট আমি এক্ষুনি যাওয়ার আগে আমি যেহেতু রেনি সিজনের ব্যাপারে 24x7 ব্যাপারে সিএসএস তে মিটিং করেছি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টোটাল হোম সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি, ডিজি, এডিজি, ল অ্যান্ড অর্ডার, সিপি, সিআইডি সবাইকে ডেকে এনে সবাইকে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়েছি এবং সিএস এবং আমি যাচ্ছি, তাই হোম সেক্রেটারির দায়িত্বে থাকবে। বাদ বাকি সবাই আছে, পরম্পরা অনুযায়ী সবাই মিলে সবার মতো কাজ করবে। মিনিস্ট্রির রদবদলটা কাল রাত্রে রাজ্যপাল সই করে দিয়েছে, ওটা আজকে আমরা বের করে দিয়েছি। আর বাদ বাকি কিছু চেঞ্জ আছে, ওটা কাল পরশুর মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন। ওটা নট মিনিস্ট্রি। মিনিস্ট্রিগুলো তো আপনারা পেয়ে যাবেন, কাগজ দরকার আছে আপনার, কাগজ পেয়ে যাবেন আপনারা। আর তাতে যদি কাগজ না পান, হ্যাঁ ওটা সৌম্যর কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন, আমি দিয়ে গেলাম। আর ধূপগুড়ি আমরা যেহেতু ইলেকশনের আগে বলেছিলাম যে সাব ডিভিশন হবে, ধূপগুড়ি বানারহাটের কিছুটা অঞ্চল নিয়ে সাব ডিভিশন ধূপগুড়ি হচ্ছে এবং সেটা ডিটেলস প্রসেস চলছে। ফিরে এসে আমি ওটা মানে যা করার করে দেবো। বাট ধূপগুড়িতে সাব ডিভিশন হচ্ছে, এটা যদি আপনারা দয়া করে ধূপগুড়ি বানারহাটের কিছুটা অঞ্চল নিয়ে, ধূপগুড়ি টাউন নিয়ে, ধূপগুড়ি গ্রামীণ অঞ্চল নিয়ে সাব ডিভিশন হচ্ছে, এটা আজকে ডিসিশন হয়ে গেছে। এরপর আপনাদের পালা। আমি কিন্তু যাচ্ছি 5 বছর পরে, কারণ 5 বছর যাওয়ার পারমিশন পাইনি আমরা, যদিও অনেক ইনভিটেশন ছিল, এখনো অনেক ইনভিটেশন আছে, কিন্তু বেশি দূরে আমি যেতে চাই না এই কারণে যে এমার্জেন্সি হলে আমি যাতে ফিরে আসতে পারি কাছাকাছি এবং ছোট্ট জায়গায়। কিন্তু স্পেন আমাদের সাথে বুক ফেয়ারে এবারে ইন্টারন্যাশনাল পার্টি ছিল এবং বিজনেস বিজিবিএস এর মিটিং আছে, আপনারা জানেন 21, 22, 23, সেখানেও নিশ্চয়ই পার্টনার হবে, এটা আমরা আশা করি। তাছাড়াও ফিল্মেও তারা আসে, ওদের ফিল্ম, পেন্টিংস, ফুটবল সবকিছুই ভেরি পপুলার এবং ওদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোপ ফর দ্য বেস্ট। दीदी 13 सितंबर को यूनाइटेड ऑपोजिशन अलायंस इंडिया की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली थी दिल्ली में, और उसी दिन आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी को समन किया है ईडी ने। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि वो मेंबर हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उसमें उनको जाना था, लेकिन सेम डे ईडी ने उनको समन किया है। दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा। आई विल, ये हमारा रिक्वेस्ट है, देखो पॉलिटिकली आपका साथ हमारा डिफरेंस होगा। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी में कुछ पार्टी का साथ कुछ एडजस्ट होता है, कुछ पार्टी का साथ कुछ एडजस्ट नहीं होता है। ये तो लोकतंत्र में होता है, लेकिन लोकतंत्र का एक सीमा होता है, वो सीमा मान के ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जो बाद में इसका दूसरी रूप हो सकता है। आज एक गवर्नमेंट पावर में है, इसी के लिए आप अगर ऐसे करें तो कल और एक गवर्नमेंट पावर में आएगा, वो भी सेम चीज करेगा। ये करना नहीं चाहिए, ये मैं समझती हूँ। हमने उसको किसी को नहीं किया। मेरे के पास कितना इंफॉर्मेशन है, मैं सीपीएम का चीफ मिनिस्टर को और वो मिनिस्टर को जितना दिन 34 साल वो लोगों ने रहा, हम एक भी टच नहीं किया कि ये हमारा लोकतंत्र को कर्सी होता है। और अभिषेक को हर तरह डिस्टर्ब करते हैं, उसको कभी लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी अपर कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है जस्टिस के लिए। अननेसेसरीली हैरासिंग, नो एविडेंस, नथिंग।
क्या नहीं किया उसका खिलाफ में, बहुत सारे किया, लेकिन तब भी ये उसको करेंगे कि वो उसको पता है द यंग जनरेशन दे कैनॉट टॉलरेट, दे वांट टू डिस्टर्ब द यंग जनरेशन। वो हमारा युवा राजनीति को, युवा पीढ़ी को सपोर्ट नहीं करने चाहते हैं, इसी के लिए ऐसा करता है। लेकिन युवा पीढ़ी इसको नहीं मानेंगे, वो लोग हिम्मत से लड़ेंगे। लेकिन हमारा यही विनती होगा हर राजनीतिक दल का, जैसे चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट किया, मैं पसंद नहीं किया, मेरे को पसंद नहीं आया। इसी के लिए अगर कोई गलती है तो आप बात करो, इंस्पेक्शन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, तो आपका हाथ में है। लेकिन विंडिक्टिवली किसको साथ कुछ नहीं करना चाहिए, जो आने वाला समय इसको बुमेरंग हो सकता है। October, you all had to do protest in Delhi. You all said that because of the 100 days works money has been not released by the central government. Though the permission has not been granted by the Delhi police, will the protest be, or you'll be continuing your protest on 2nd October? देखिए, दिल्ली पुलिस कैसे परमिशन देंगे, वो तो डरते हैं। मैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारे एनिमी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बात में उसको चलना पड़ता है। गांधी जी का उदाहरण में रेस्पेक्ट पे करने के लिए हर व्यक्ति जा सकता है उसका जन्म दिवस पर। हमको अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम प्रे करने के लिए जाएंगे। हमारा एमपी, एमएलए, जिला परिषद का प्रेसिडेंट, हम तो राजघाट में प्रे तो जरूर कर सकता है ना। 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया, वो रास्ता का पैसा नहीं दिया, वो आवासन का पैसा नहीं दिया ग्रामीण आवास योजना में, ये सब पड़ा है। उसका बाद 1,15,000 रुपीज और भी सब मिला के हम लोग केंद्र से हमारा पड़ा है। हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी स्टेट सेंट्रल रिलेशन को, अगर फेडरलिज्म को थोड़ा भी इज्जत है तो इसको क्लियर कर देना। गरीब लोगों को साथ राजनीति करना ठीक नहीं होता है। দিল্লিতে এবং আপনার কাছে একটা চিঠি নবান্নে পাঠানো হয়েছে, আপনাকে কি না, কোনো না, চিঠি না। দিয়েছেন? না না না, সেরকম কোনো চিঠি দেয়নি। উনি আমি বাইরে যাচ্ছি তাই বেস্ট উইশেস দিয়েছেন। বলেছেন দিস যে অ্যাবসলিউটলি পার্সোনাল। আজকে বলেছেন যে যাকে চিঠি দিয়েছি তিনি যা বলার বলবেন। বললাম তো বেস্ট উইশেস फॉर माय फॉरेन ट्रिप्स एंड उन्होंने शुभकामना बताया। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি প্রকাশ করুন। মানে বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে রাজ্যপাল যে চিঠি দিয়েছেন সেই চিঠি মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করুন। पर्सनल चिठी आई कैन नॉट डिस्क्लोज, दिस इज कॉन्फिडेंशियल पर्सनल, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। One, on 21st of July 2020, for the first time you said that BJP is aiming towards one nation, one government. On 18th of this month, there is a special parliament session has been called, and the murmurs are suggesting it. देखो, let us see the suggestion first. Let us see the bill first. Without seeing the details, I cannot comment. We will properly study and then I'll comment. But one nation, one poll, do you think in Indian But setup? I cannot guess. I cannot. देखिए, हमारा पहले बिल देखना जरूरी है। हम पहले बिल देखेंगे, उसका बाद जो कहेंगे पार्लियामेंट्री पार्टी कहेंगे, तो जरूर हमारे साथ बातचीत कर लेंगे। हमारा जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, हम देखने का पहले ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिसमें सच नहीं है। हमको पहले देखना है मोटिव क्या है और बिल में क्या है। Do you also see any motive in sudden narrative of BJP leaders calling India Bharat and only Bharat? देखिए, भारत हम लोग भी कहते हैं, भारत तो हम लोग भी हिंदी में, बांग्ला में भारत कहते हैं, ये कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन वो इंडिया को काट दिया है, ये ठीक नहीं हुआ है। इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं तो आप देख लीजिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके पहले इसको बता दिया, पहले इसमें मोहर लगा दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और भारत तो हम भी कहते हैं, हमारा तो कोई एतराज नहीं है भारत के बारे में, लेकिन इंडिया काटने का कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारा पासपोर्ट में भी लिखा है रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जिसका ऊपर देश चलता है, उसमें भी लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इसमें एक वर्ड चेंज करने से क्या है?
क्यों करेगा? जो है कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई भारत बोलता है हिंदी में, हमारा बांग्ला में भी हम भारतवर्ष बोलता है। ये सब तो लोगों को जो पसंद आता है। भारत माता को हम लोग कभी ऐसा बात नहीं करते, लेकिन भारत माता का नाम है उधर में, जो है वो है दूसरी लाइन पे है, आप देख लीजिए प्रीएम्बल का बाद। इंडिया नाम उठाने का कोई सवाल नहीं है। वो जो किया है वो लगता है इंडिया जो अलायंस हुआ है इसका बारे में उन्होंने सोचा, इसी के लिए चेंज किया है। तो इसके बारे में तो हम भी कह सकते हैं कि आप लोटस को G20 में पूरा लोटस बना दिया, G20 का सिंबल। ये भी आपको नहीं करना चाहिए। लोटस सिंबल बीजेपी का सिंबल है, वो भी हमारा नेशनल सिंबल है, कैसे एक पार्टी का सिंबल होता है, इसमें सोचना चाहिए। हम झगड़ा करने के लिए ये बात नहीं किया, हम आपस में ये बात कहते हैं। A couple of days back, you said you received a message from somebody saying that Abhishek Banerjee can be arrested. That's the fear. देखो ऐसा बात नहीं है, बार बार हमारा फैमिली को अटैक करना और प्रेस में बात करना मेरे को ठीक नहीं लगता है। उसका खिलाफ में कुछ नहीं है, जस्ट हेरासिंग हिम। ही इज ए यंग मैन, द यंग जनरेशन इज विथ हिम, स्टूडेंट एंड यूथ, so they will give the reply. देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें भारत है। देखो इतना जल्दी जल्दी कैसे चेंज करेगा? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all the citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constitution. It has been written, and then the लिखा है नेम सेकेंड पैरा में जाओ, पार्ट 1 में, the union and its territory, number 1, name and territory of the union India, that is भारत। तो भारत तो लिखा है shall be a union of the states। যাচ্ছেন কোন মন্ত্রী গোষ্ঠী এর আগের বার যেরকম করে দিয়ে গেছিলেন এমন কি কিছু করে দিয়ে যাচ্ছেন? সবাই সবারটা দেখবে। হোম সেক্রেটারি যেমন টোটাল সব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে নিয়ে দেখবে, তেমনি মিনিস্টারদের মধ্যে যারা আছেন সবাই মিলে সবারটা দেখবে। আমি বলে দিয়ে গেছি সবাইকে, সবাই সবারটা নজর রাখবে, নজর রেখে একসাথে কাজ করবে। দিদি, আপনি বার্সেলোনা এবং মাদ্রিদে যাচ্ছেন, এটা ফুটবলের শহর হিসেবে পরিচিত। রাজ্যের জন্য ফুটবলের কোনো মিটিং বা আপনি কোনো পরিকল্পনা কিছু? আমি আগে থেকে কি করে বলবো বলুন? আমার সাথে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মোহামেডান স্পোর্টিং এর রিপ্রেজেন্টেটিভরা যাচ্ছেন এবং সৌরভ গাঙ্গুলিও ম্যাড্রিডে থাকবেন। সবটাই যদি এখন বলে দিই তাহলে চমকের জন্য আর কি থাকবে? বাংলার জন্য যখন যাচ্ছি কিছু তো করতে হবে। সেগুলো আপনারা খবর পেয়ে যাবেন, আমরা দুবেলা প্রেস কনফারেন্স মানে প্রেস রিলিজ করব। দিদি, গভর্নর মানে আমাদের ইন্টারিম ভিসি নিয়োগ নিয়ে তো একটা চলছিল, আমি এসব নিয়ে এখন কোনো মন্তব্য করছি না, যা করবার ফিরে এসে করব। এখন प्लीज अलाउ मी टू गो। 5 साल हम नहीं गया, इसमें जो बात है बात करके भी बहुत चीज निकाल सकता है, देखेंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, thanks to all of your family members and thanks to all of you. Some people are going with me also, we will take care for them. Thank you. জয় বাংলা। भारतवर्ष संविधान दीर्घजीवी हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम श्रद्धा निवेदन करते हैं और भारत माता की जय।